Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. Thank you for liking my videos. I want more suggestions and comments from your side so that I can improve my videos and that can help you better. In this video, we are going to study force and laws of motion, which is chapter 8 of new NCERT class 9 textbooks. The video will have explanation of what is force, effects of force, different types of forces, that is balanced and unbalanced, Newton's law of motion, that is the first law of motion, second law of motion, and third law of motion, and their application in everyday life. Let's start with what is force. हमने क्लास 8 तक पढ़ा है फोर्स इज अ पुश अ पुल. अब हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसे बेटर बनाते हैं. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट. वो एजेंट जैसे कि मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, विच इज केपेबल ऑफ changing the state of an object. एक ऑब्जेक्ट किस स्टेट में हो सकता है? या तो वो रेस्ट में हो सकता है, तो उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज करना, या एक ऑब्जेक्ट मूविंग हो सकता है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना. जिसमें ये कैपेबिलिटी है, उस एजेंट को हम फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when we push a door to close it, we are using muscular force. When we're pulling a door to open it, we are using muscular force. So our muscles are giving a force. What are the effects of force? हम जानते हैं कि अगर हम एक बलून को लेते हैं, जब उसमें हम एयर फिल करते हैं, तो द शेप चेंजेस बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ एयर. और जब ये फूल जाता है बलून और इसे हम हाथ से प्रेस करें, then also the shape changes. So force can change the shape of a body. इसी तरीके से यहां पर मैंने एक साइकिल दिखाई है. अगर आप हैंडल पे फोर्स लगाएंगे तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर हम रेस्ट पे थे, तो जैसे ही हम पैरों से पेडलिंग करते हैं, वी कैन चेंज द रेस्टिंग बॉडी इन मोशन बाय फोर्स. सिमिलरली, जब हम चलने लगते हैं, बाय फोर्स और अप्लाइंग ब्रेक, वी कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी. ऐसे ही हम इंक्रीज करते हैं पेडलिंग, तो जो फोर्स हमने लगाया उससे स्पीड इंक्रीज हो गई मूविंग बॉडी की. So force can change the shape, force can change the direction, force can bring a resting body in motion, force can stop a moving body, and force can increase or decrease the speed of a moving body. ये सारे हैं effects of force. Let us see the types of forces. The forces are of two types. One is balanced, another is unbalanced. आप यहाँ पे देख सकते हैं दो बच्चे दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. If the forces are equal, that is 30 newtons on each side, so there is no change in the state of rest or motion of an object. So the forces are balanced. यहाँ पे net force is balanced और zero. फोर्स को अगर वो राइट साइड की तरफ लग रहा है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड पे लगता है तो उसको हम देते हैं नेगेटिव. तो यहाँ पे 30 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, 30 on right side and 30 on left side will give us the net force or the resultant force as 0. अगर unequal forces लग रहे हैं in opposite direction, the resultant force is difference of two forces in the direction of force. जैसे यहाँ पे लेफ्ट में लग रहा है 60 न्यूटन्स और राइट में लग रहा है 30 न्यूटन्स. तो 30 is right side and left side is minus 60. The resultant is minus 30 on the left side. So there will be effective force seen on the left side.
and this type of force is known as unbalanced forces. Unbalanced forces brings a change in the state of rest or motion of an object. अगर दो इक्वल या अनइक्वल फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे इन द सेम डायरेक्शन, एंड फोर्सेस आर अगेन अनबैलेंस्ड. Force of friction, it always act opposite to direction of motion of an object. ये एक फोर्स है जो नेचर हर मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है. गैलीलियो ने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया और उन्होंने कहा जब कोई फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करता तो ऑब्जेक्ट कैन मूव विथ कांस्टेंट स्पीड. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक इंक्लाइन प्लेन पे किया और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से जब थ्रो किया तो he said the velocity will increase and it can rise to the same height on an opposite side like this. और जितना हम इंक्लाइन प्लेन को फ्लैट कर देंगे उतना इट कैन गो with constant speed unlimited forever if there is zero unbalanced force. But हम जानते हैं कि zero unbalanced force is practically impossible because there is always friction present in nature which tries to stop the moving object. न्यूटन ने इसी आइडिया को स्टडी किया और उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए जिन्हें कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. First law is known as first law of motion or law of inertia. The law states every object in this universe tries to be in its state of motion or rest unless some external unbalanced force is applied to change the state. कि हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में रहने की कोशिश करता है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे. इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देख सकते हैं जिसमें एक ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा गया और उसके ऊपर एक कॉइन रखा गया है. कार्डबोर्ड को जब फ्लिप किया जाता है विद फोर्स द कार्डबोर्ड मूव्स एंड द कॉइन फॉल्स डाउन बिकॉज कॉइन अपने इनर्शिया की वजह से इट रिमेन्स टू इन स्टेट ऑफ रेस्ट. Similarly, we have seen that we fall forward when bus suddenly stops because our body which was in contact with the bus, हमारे जो पैर जो नीचे टच हो रहे थे बस को, जब बस स्टॉप हुई तो वो स्टॉप हो गई हम, लेकिन हमारी ऊपर की बॉडी ट्राइज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन. इसी तरीके से we tend to fall backward when stationary bus suddenly stops. यहाँ पर भी हमारे जो lower part of the body है it remains in contact with the bus. So when it suddenly stops, the body tries to be in state of rest और इसीलिए it falls backward. Similarly, we can see another example कि if a carpet is beaten, the carpet will move and the dust particles which are inside the carpet, they remain in their original position. So they come out when it is beaten. Similarly, हम अगर एक ट्री की branches को shake करते हैं, तो when the branches are shaken, the leaves tries to be at the state of rest और इसीलिए they fall from the branches. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं. बोर्ड गेम पे जब हम कैरम में एक स्टैक ऑफ कॉइन्स के ऊपर हिट करते हैं बाय फोर्स स्ट्राइकर से, तो स्ट्राइकर से खाली नीचे वाला कॉइन जो है वो मूव होता है, ऊपर वाले कॉइन्स दे ट्राई टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया. अभी हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा. इनर्शिया क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. मतलब हर ऑब्जेक्ट की
एक अपनी प्रॉपर्टी है ये कि वो अपनी ही स्टेट में रहने की कोशिश करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इनर्शिया इज मेजर्ड बाय इट्स मास। इसका मतलब एक हैवी ऑब्जेक्ट जो होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा या जिसका मास ज्यादा है, और जो लोअर मास का ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया कम होगा। सो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक बॉडी पे जो फोर्स का इफेक्ट है वो उसकी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया और एक टर्म दी जिसे कहा मोमेंटम। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, and it is denoted by p. It is a vector quantity. Velocity vector है तो momentum is vector quantity. Units क्या हो गई इसकी? Mass की kg और velocity की meter per second. So momentum becomes kg meter per second. अब देखते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे चेंज होता है। सपोज ए बॉडी हैज अ मास m and it has an initial velocity v and the velocity changes to v. So momentum changes from mu to mv. So change in momentum is mv minus u. The rate of change of momentum is change of momentum with respect to time. So it is mv minus u upon t. तो हमने देखा change in momentum is m into v minus u upon t. Second law of motion, rate of change of momentum से ही related है. It says the rate of change of momentum is proportional to the applied force and it is in the direction of force. अब हमने देखा था चेंज इन मोमेंटम, अगर हमारा इनिशियल मोमेंटम पी आई है और फाइनल मोमेंटम पी एफ है तो चेंज इन मोमेंटम इज पी एफ माइनस पी आर. इट इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी. ये क्वांटिटी v minus u upon t is acceleration. So that means it becomes m into a, which is actually force. So this can be written as F equal to K into M into A, where K is proportionality constant. So force is measured in newtons or kg meter per second square. Symbol for Newton is capital N. 1 Newton can thus be defined as it is a force applied on a body of mass 1 kg which experiences an acceleration of 1 meter per second square. This law can be applied to many things in everyday life. Here we can see two persons are taking the trolleys. One is having larger mass than the other. Both are applying same force. Now, because the mass is more in the first trolley, there will be less of acceleration. And in the second case, there will be more of acceleration because both are applying the same force. Mass is less in the second case. So acceleration increases with increase in force. It is directly proportional. Acceleration is less if objects have more mass. So there are many applications of Newton's second law of motion in everyday life. यहाँ पे कुछ examples मैंने लिए हैं. हम देखते हैं जब भी कोई बॉलर बॉल कैच करता है तो he takes his hand back. He wanted to increase the time. जब चेंज मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उसको वो ज्यादा टाइम दे रहा है ताकि उसको चोट ना लगे, क्योंकि हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी. तो ये अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो कम हो जाएगा. जितना टी ज्यादा होगा उतना इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा.
इसी तरीके से हम देख सकते हैं फॉर लॉन्ग एंड हाई जंप सैंड बेड इज प्रोवाइडेड। ये सैंड बेड क्यों दिया जाता है, मिट्टी क्यों नहीं रखी जाती है, हार्ड क्ले का फ्लोर क्यों नहीं होता है? इट इज ऑल्सो टू इंक्रीज द टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जितनी देर में मोमेंटम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, टाइम जितना ज्यादा लगेगा सैंड में जब गिरेगा एथलीट, तो वो उसको टाइम लगेगा उसके अंदर जाने में, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी कार के सीट बेल्ट लगी होती है, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स और सडन ब्रेकिंग। तो ये कैसे हेल्प करता है कि जब ब्रेक हम लगाते हैं, सडन ब्रेक लगाते हैं, तो इट इंक्रीजेस द टाइम ऑफ हिट। कैसे? बाय द स्ट्रेच ऑफ बेल्ट। जितनी देर में बेल्ट स्ट्रेच होगी और हम आगे पहुंचेंगे हिट करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द कार, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी है, जिस स्पीड से हम आगे जा रहे थे, वो स्पीड जो है कम हो जाएगी एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स विल बी रिड्यूस्ड। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन says to every action there is equal and opposite reaction. They act on two different bodies. Action किसका? फोर्स का। जब भी कोई एक्शन हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो एक ऑपोजिट फोर्स भी लगता है, and both the forces act on two different bodies. Let us see this with an example. जब हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं, we push the ground backward. हम चल क्यों पाते हैं? Because the ground pushes us forward. Second example is when bullet is fired from the gun. The bullet comes out with a force and it pushes the gun backward. आप जानते हैं इसीलिए हम गन को कंधे पे रख के चलाते हैं, अदरवाइज उसके बैक फोर्स से जो गनमैन है ही कैन फॉल बैकवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेलर एक बोट चला रहा है एंड ही इज पुशिंग द वाटर टूवर्ड्स द बैक। ये बैक वाटर बोट को फॉरवर्ड पुश देता है। इसी तरीके से रॉकेट से जब एग्जॉस्ट और गैसेस उसमें से बाहर निकलती हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट गिव्स अ फॉरवर्ड पुश टू द रॉकेट इन द एटमॉस्फियर। एरोप्लेन के लिए भी ऐसे ही होता है। So I've tried to explain the concept of this chapter in less than 20 minutes. If you have any doubts, write in the comment section. Like and subscribe my channel to get the notification of my forthcoming videos. I'm sending you the description of my other videos of class 9 in the description box. Thank you for watching this video and have a nice day.